See how it started from Uttarakhand. Trivendra Singh, Tiraj Singh and now Dhami. In Karnataka from Yedurappa to Bomai. In Assam from Sonwal to Sarma. In Gujarat from Rupani to Bhupendra Patel. I am asking why all of them were removed. Because they were not doing good work, na? That is what you want to share, that they were not doing good work as far as the COVID-1 and say 2 wave is concerned. Why they were not doing good work? Because Government of India were not able to give them the vaccines. Because Government of India was busy in beating the Thali and Tali. They were not procuring the vaccines when the major countries of the world were procuring that. So it is time not to remove CM, it is time to remove PM. Because of whom we had suffered the first and the second wave of the coronavirus. When there was no adequacy of vaccine at that time, our Honorable Prime Minister was talking about the diplomacy of vaccine. We want adequacy of vaccine, he was talking about diplomacy of vaccine. And today also I will ask a simple question, which I raised many a times, that you gave 31st December, that by 31st December, or entire population of the country which is 18 plus is going to get vaccinated. The current trends are showing that it is not possible. Is Prime Minister going to resign on 31st December? Because he and his ex-minister, the ex-health minister had promised, I'm referring Dr. Harshvardhan. Is Prime Minister going to resign on 31st December? See, neither you can put the vaccines doses on time, nor you can create the jobs on time, nor you can make the economy again the reviving on time. So when you had failed in economy, in jobs, in vaccination, then it is time to get the new Prime Minister rather than the new Chief Ministers of the various states. What we had seen in last 2 years in UP, we had seen in Uttar Pradesh in last 2 days that the bodies were floating in Ma Ganga river. We had seen that. Who is responsible? The Chief Minister of the state is responsible. Prime Minister had tried to remove him, but he, with his proximity with the RSS leadership, that was not possible. Now I am raising again a very simple and fundamental question. Congress party is going for the upcoming UP election with a positive governance model. Not Samshan versus Kabristan, not Brahman versus Yadav, not this Gotra or that Gotra. We are going with a agenda that how we are going to create jobs in Uttar Pradesh, how we are going to prevent the incidents like what happened in Hathras. एक बच्ची को केरोसिन छिड़क के रात को 12 बजे हाथरस में जिस सरकार ने जलाया है, उस सरकार से ज्यादा अनैतिक सरकार आजाद हिंदुस्तान में नहीं हो सकती. जिस तरह से आप जैसे पत्रकारों को हाथरस इंसिडेंट्स कवर करने से रोका गया, आपके ऊपर लाठियां भांजी गई, उससे ज्यादा अनैतिक सरकार हिंदुस्तान में नहीं हो सकती. आपने गलती की और आपने गलती को छुपाने के लिए उससे बड़ी गलती करी. इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी. That was the perfect example of the governance in Uttar Pradesh. Now we were moving with the people. हम जगह जगह, ब्लॉक टू ब्लॉक, गांव टू गांव, हमारा पॉजिटिव आइडिया ऑफ इंडिया, हमारी आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया, हमारी जो हम कहते हैं कि द ट्रू face of India, where there is only one religion of the country, that is the constitution of the country. We are not trying to talk about that Shamshan बना दिए, कब्रिस्तान बन गए, शमशान क्यों नहीं बने. Is this the way the elections will be contested? And unfortunately what is happening, that again the Prime Minister, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh and few media channels are trying to make that Taliban and Taliban. And see, Taliban is a different issue. What is your answer on the governance? I raise a simple point. If Honorable Chief Minister of UP can answer, give me any one project which was started in last 5 years by Yogi government and was completed in last 5 years. Any one government, starting from Lucknow to Banaras to Allahabad to Gonda. Give me one project which was started by UP government in last 4.5 years and completed in last 4.5 years. उत्तराखंड, आसाम, कर्नाटक. उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह गए, तीरथ सिंह आए. तीरथ सिंह गए, धामी आए.
कर्नाटक में येदुरप्पा गए, जिनको बोला गया ये भ्रष्टाचारी है, नहीं आए बोम्मई जी। यहाँ पर असम में सोनवाल जी गए, शर्मा जी आए, और अब गुजरात में रूपानी जी गए, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी आए। क्यों हटाया गया इन्हें हटाने का क्या कारण था? इनका हटाने का कारण था कि यह लोग अयोग्य थे। ये लोगों ने इनके कारण कोरोना की पहली और दूसरी वेव में लोगों की जान गई। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी थी गुजरात सरकार कि ये गुजरात सरकार टाइटैनिक की सिंकिंग शिप की तरह है। जब लोगों को वहां पे अहमदाबाद में कोरोना की पहली वेव के दौरान बिस्तर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, किसकी जिम्मेवारी थी वो सब देने की? केंद्र सरकार की। तो हटना किसको चाहिए था? माननीय प्रधानमंत्री को चेंज करने की जरूरत थी, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत थी। फिर आप ये बदल के आप क्या जताना चाह रहे हो? आपने एक जो म्यूजिकल चेयर जिसको हम कहते हैं वो चालू कर रखी है। अभी तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जैसे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह गए, तीरथ सिंह आए थे 1.25 साल पहले, फिर भी 6 महीने पहले धामी आए, तो अभी इनके धामी आना बाकी है गुजरात में। गुजरात के नए धामी कौन होंगे वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सब लोगों के पास कोई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। इनका एक ही मॉडल है, बांटो, डाइवर्ट करो, मुद्दों को डिस्टॉर्ट करो, मुद्दों को डिवाइड करो, लोगों को डिवाइड करो और राज करो। पर पिछले 7 साल में भारत की जनता ने इनके मॉडल को देख लिया, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाले। दुनिया के बड़े अखबारों ने, न्यूयॉर्क टाइम हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, उन्होंने वो तस्वीरें छापी जब गंगा माँ के अंदर लाशें तैर रही थी। उनके कौन है, उन लाशों का दोषी कौन है, उन लाशों का गुनहगार कौन है? माननीय योगी जी ने बात करी 2017 के पहले। मैं कहता हूं आजाद हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान की अगर पिछली 200 साल भी देख लें तो इस तरह के हमने कभी हालात नहीं देखे कि गंगा के अंदर लाशें तैर रही है और सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। ये 2017 तो भूल जाइए आप। आज जो हुआ है, जिसके कारण वैश्विक पटल पर भारत की नाक कटी है, आप ट्रीटमेंट छोड़ के आप क्रोसिन की गोली कोरोना के मरीजों को नहीं दे पाए, और अब आप वापस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूं, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूं, आप जान साहब, योगी साहब, आपकी सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे, जिसमें हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे उस पे बात करेंगे, महिलाओं के आत्मसम्मान की कैसे रक्षा होगी उस पे बात करेंगे। जिस सरकार के नीचे हाथरस जैसी घटना हो जाए, उस सरकार को नैतिकता के आधार पे एक क्षण भी रहने का ताकत नहीं होनी चाहिए। उनको एक क्षण भी सरकार में, सत्ता में नहीं रहना चाहिए। जब एक बच्ची को केरोसिन छिड़क के रात के 2 बजे जलाया जाता है और आप जैसे जर्नलिस्ट को वहां जाने से जिस सरकार ने रोका है, वो सरकार एक क्षण भी अगर शासन में रहती है तो उनमें रत्ती भर भी नैतिकता नहीं बची है। और फिर आप चालू हो गए, अब्बा जान, भाई जान। आपके कौन भाईजान है, कौन अब्बा जान है, देश को पता है। आप तो ये बताइए कि नौकरियां कैसे लगेगी, आप ये बताइए महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा कैसे होगी, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में पिछड़ा क्यों। और मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, योगी जी से सवाल पूछता हूं कि पिछले 4.5 साल में एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जो आपने चालू किया हो और जिसको समाप्त किया हो। एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक और गोंडा से लेके बनारस तक।